Hello students, today we will start a new chapter, chapter 7, coordinate geometry. Okay, in the last class I have explained to you about the triangle, different type of triangle, okay, similarity criteria of triangle, about similar triangle, Pythagoras theorem, and all exercise we have done 6.1 to 6.5. 6.4 we have not done because this is deleted. 6.4 exercise is deleted for this session. Okay, so let's start coordinate geometry. Chapter 7, coordinate geometry. In class 9 also you have read coordinate geometry. In that, what you have read I will explain today. So first of all, let us know about coordinate geometry. What is coordinate geometry? This is a branch of mathematics in which we locate position of a point on a plane. ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें एक पॉइंट की पोजीशन को हम एक प्लेन पे क्या करते हैं, लोकेट करते हैं. और इस लोकेट करने के लिए, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमें क्या मिलता, ज़रूरत होती है पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की, कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होती है. ठीक है. अब सपोज करो दिस इज अ प्लेन, this is x axis and this is y axis, both intersect each other at O. This O is known as origin, and on the plane where you draw x axis and y axis, that is known as Cartesian plane. Okay, suppose here is the point, here is the point, so the distance of this point from the y axis is called x coordinate. मतलब y axis से जितना distance होता है ये, और एक डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से होती है. ध्यान दीजिए, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है कितनी है, ये एक्स के पैरेलल है, मतलब वाई एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 है. और एक्स एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 2 3 यहाँ तक. तो 4 3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. इन दैट 4 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस and 3 is the distance from the y axis. So 4 is the coordinate of x and y is the coordinate of 3 is the coordinate of y. Okay, x coordinate is also known as, this 4 is also known as abscissa, and y coordinate is also known as ordinate. Okay, so in this chapter what you will study, you will study to find the distance of 2 points ऑन ए प्लेन. एक प्लेन पे अब 2 पॉइंट दिए गए, सपोज करो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को आपको निकालना बताया जाएगा. एंड दिस इज नॉट ऑन द ग्राफ पेपर, इट विल डू विद द फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला. ऑल्सो सपोज दिस लाइन इज डिवाइडेड बाई ए पार्टिकुलर पॉइंट, this line is divided by a particular point in particular ratio. Okay, so to find that ratio or to find that coordinate of the particular point, you have to use the formula. That formula is known as section formula. So first you have to find the distance between 2 points, that is known as distance formula, and second you have to find the ratio in which a particular point divide the given line. That formula is known as section formula. What? Section formula. Okay, so this is in exercise 7.1 you have to use. In exercise 7.2 you have to use section formula, and exercise 7.3 you have to use the formula for finding the area of the triangle. Suppose 3 coordinates are given, this, this and this. These 3 coordinates make a triangle. Then how will you find the area of the triangle without using a Cartesian plane or a graph paper? That formula is known as formula for finding the area of the triangle. Okay, so 3 formulas are there, but the area of triangle is deleted for this session due to the corona epidemic.
this 7.3 exercise has been deleted. So you have to only read about distance formula and section formula. Okay, as you know, in a Cartesian plane, the x-axis and y-axis divide the Cartesian plane in 4 parts. Each part is known as quadrant. This is quadrant first, this is quadrant second, this is quadrant third, and this is quadrant 4. Okay, the sign of the quadrant first is plus plus, because x is also plus, y is also plus. Here x is minus, therefore sign is minus, and y is plus, sign is minus plus. Okay, the third quadrant, x is also minus, y is also minus, this is minus minus, and fourth quadrant, x is plus and y is minus, so this sign is plus minus. Okay, now let us discuss about the distance formula. Suppose you are given a point here, the coordinate of this point is 4 3. Okay, 4 3, and second point is here, the coordinate of this point, as I have told you, the distance from the y-axis of a particular point is known as abscissa or x-axis, and the distance from the x-axis is known as ordinate or y, the value of y, ordinate of y. So this is 7 6. Okay, now if you are said to find the distance between these two points, you have to find this distance. Suppose this is A and this is B. How will you find? If you will do on the graph paper, how will you find? First you will find it, this line is quite not straight, you have to consider it a straight line. For finding the distance AB, you have to draw a triangle. Okay, you have to join this line. Now suppose this is C. Okay, so you can consider this ABC as a right triangle. If you know the length of side AC and side BC, then according to the Pythagoras theorem you can find the third side AB. अब ध्यान दीजिए, AC आपको कहाँ से मिलेगा? AC की लेंथ आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3, 3 यूनिट की डिस्टेंस है. अब ये 3 यूनिट आपको कहाँ से मिलेगी? इस पूरी डिस्टेंस में से, मतलब 7 में से आप 4 को क्या करोगे? माइनस करोगे. 7 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी 7 माइनस 4. ये AC इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4. ध्यान दीजिए, ठीक. अब ये BC आपको निकालना है, तो BC यहाँ काउंट करो 1 2 3, ये भी हो गया. तो ये कहाँ से निकालोगे? ये पूरा यहाँ से 0 से 6 तक की डिस्टेंस में से 0 से 3 तक की डिस्टेंस को माइनस करोगे. इस पूरी डिस्टेंस में से ये यहाँ तक की डिस्टेंस आप माइनस करोगे. ठीक है, तो BC आपकी क्या निकल जाएगी? 6 माइनस 3. ठीक है, अब ध्यान दीजिए फिर से. तो AC इज इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3. और BC इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3. मतलब ये आ गया 3 यूनिट, ये भी आ गया 3 यूनिट. तो AB आप निकाल सकते हो. AB कैसे निकालोगे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री. ओके, तो दिस इज AC 3 स्क्वायर, and this is BC also 3 square, that is 3 square 9, and this is 3 square 9. okay, this is 18. तो AB इक्वल टू AB आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट 18 हो जाएगा. ठीक है, अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए. ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का. ठीक है, तो ये हो जाएगा XY, ये भी हो जाएगा XY. ठीक है, अब चूंकि दो x और दो y हो गए, तो हम इसे रख लेते हैं x1 y1, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में भी हमने बताया था कि व्हेन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर देयर, तो हमने क्या बताया था? a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरे का हमने बताया था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. ठीक है, अब फिर से ध्यान दीजिए, नीचे हमने AC लिखा है 7 माइनस 4, तो 7 क्या है आपका? देखिए x2 है, तो ये हो जाएगा x2, और ये 4 क्या है? x1 की वैल्यू, x2 माइनस x1. ठीक है, और BC क्या है? ये BC हमने निकाला
किसमें से 6 माइनस 3, तो 6 क्या है y2, 6 क्या है y2 और 3 क्या है y1। ठीक है, तो 7 माइनस 4 x2 माइनस x1 और 6 माइनस 3 हो गया y2 माइनस y1। तो फिर से ध्यान दीजिए, तो AC हमने जो निकाला AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC कैसे निकला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC कैसे निकाला y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, BC कैसे निकला y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये BC निकल गया, AC निकला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और BC निकला y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जब AB निकालोगे तो स्क्वायर ये हटाओगे और इस पूरे पे क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे। ठीक है, तो यही जो है फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ, फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, AB हो सकता है, AC हो सकता है, कुछ भी, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। कोई भी डिस्टेंस आपको निकालना हो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। देखिए PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। PQ डिस्टेंस AB हो सकता है, CD हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। PQ डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, AB हो सकता है, PQ हो सकता है, इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म ए ट्रेंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रेंगल फॉर्म। अब ट्रेंगल की साइड्स का लेंथ मेजर करके हम ये बता सकते हैं ट्रेंगल किस तरह के ट्रेंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलस है या स्केलन है। तो इसमें क्या करेंगे, दो पॉइंट को हम लेकर के पहले डिस्टेंस निकालेंगे। ये 3 2 हो गया x1 y1 और ये -2 -3 हो गया x2 y2। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 -2 -3, क्योंकि x2 माइनस x1 है या x1 माइनस x2 है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसको आप x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में आए या प्लस में आए चीज़ें जो हैं हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, तो पहले हम x2 माइनस x1 स्क्वायर से ही बात करते हैं। तो देखिए -2 -3 क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25, फिर -3 -2 ये भी जो है -5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर प्लस 25 होगा, 25 25 50। तो ये PQ की डिस्टेंस आ गई √50। इसी तरह QR की डिस्टेंस हो गई √52 और PR की डिस्टेंस हो गई √2। √2 की वैल्यू 1.41 अप्रॉक्स, √52 की वैल्यू 7.21 और √50 की वैल्यू 7.07। ठीक है, अब ये तीनों जो है स्केलेन ट्रेंगल है, क्योंकि एक भी साइड इक्वल नहीं है। तो क्या किया गया है, इसमें ये देखा गया है कि आर द साइड्स मेक्स ए राइट ट्रेंगल और इट इज ए राइट एंगल ट्रेंगल और नॉट। तो राइट एंगल ट्रेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर, मतलब कि दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे के बराबर होता है तो √50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, तो 50 और 2 52 और √52 का स्क्वायर 52 हो जाएगा। तो देयरफॉर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, देयरफॉर इट इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ लिखा गया है, देखिए ऑल्सो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। So by the converse of Pythagoras theorem you have angle P is equal to 90 degree, therefore PQR is a right triangle। ठीक है, समझ गए। और एक चीज़ और, अब ये ट्रेंगल पहले बना कैसे ये भी पता करना पड़ेगा कि ट्रेंगल है या नहीं है, क्योंकि ट्रेंगल अगर होती है तो ट्रेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज greater than the third side or the difference of any two side of a triangle is less than the third side. So since the sum of any two of these distance is greater than the third distance, therefore the point PQR form a triangle। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट द पॉइंट 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो
अगर हम ये चारों डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ये जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो किसी भी दो कोऑर्डिनेट का निकालोगे, एक x1 y1 हो जाएगा, फिर ये x2 y2 हो जाएगा। फिर जब BC निकालोगे तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। CD निकालोगे तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। और DA निकालोगे तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। केवल दो कोऑर्डिनेट को लेके आप डिस्टेंस निकालते हो। अब ये बताओ कि अगर चारों कोऑर्डिनेट से आप डिस्टेंस निकाल लेते हो और AB, BC, CD और AD इक्वल हो जाता है तो क्या ये स्क्वायर होगा? नहीं, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये AB, BC, CD और DA निकालने के बाद दो डायगोनल भी हमें निकालने पड़ेंगे, AC और BD। A और C से AC निकलेगा, B और D से BD निकलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं तब ये स्क्वायर है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं तो ये एक रोम्बस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए AC और BD √68 और ये चारों साइड जो है आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये चार साइड इक्वल और दो डायगोनल इक्वल, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। ओके, नाउ सी एग्जांपल नंबर 3। Figure 7.6 show the arrangement of desk in a classroom. Asima, Bharti and Kamila are seated at A31, B64 and C86 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reason for your answer. अब देखो, this is the figure. This is A का कोऑर्डिनेट क्या है, x से 3 है, this is x एक्सिस, this is y एक्सिस, ये 3 1 है। ये क्या है B, देखो y से 4 है और x से 6 है, 6 4 हो गया। और ये C का क्या होगा, 8 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप डिस्टेंस निकालोगे AB की डिस्टेंस निकालोगे, फिर BC की डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। इट इज द क्वेश्चन इज डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन। तो एक लाइन में ये बैठी हुई हैं, ये चेक करने के लिए जब भी कहीं दिया हो आर द 3 पॉइंट्स आर इन ए लाइन, तो लाइन तभी चेक होगा जब AB की डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस इज इक्वल टू AC की डिस्टेंस होगी, ठीक है। AB की जितनी डिस्टेंस आएगी, BC की जितनी डिस्टेंस आएगी, उन दोनों को प्लस करोगे तो AC के बराबर होगा। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए आप, AB की डिस्टेंस आ गई 3√2, BC की डिस्टेंस आ गई 2√2, तो 3√2 और 2√2 आप प्लस करोगे तो 5√2। तो सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू 5√2 इज इक्वल टू AC, वी कैन से दैट A, B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ऑल द पॉइंट्स लाई इन ए लाइन, देयरफॉर दे आर सीटेड इन ए लाइन, ठीक है। फोर्थ देखिए, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 1 एंड 3 5। तो देखो 7 1 और 3 5 ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ 7 1 है और ये पॉइंट जो है 3 5 है, ठीक है। यहाँ से एक तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस है और यहाँ से भी ये इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कैसे चेक होगा, लेट Px बी इक्वी डिस्टेंस Pxy। अब ये xy है तो यहाँ जो भी पॉइंट होगा इसका एक कोऑर्डिनेट होगा x और y, ठीक है। Pxy बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A71 एंड B35, ठीक है। तो वी आर गिवन AP इज इक्वल टू BP। तो अगर A मानते हैं इसको और इसको P मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू BP, ये इक्वेशन बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अब जब AP और BP की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट में होगा ना। ये भी डिस्टेंस अंडर रूट में होगा, ये भी डिस्टेंस अंडर रूट में होगा। इसलिए क्या करते हैं, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि किसी भी अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो अंडर रूट अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये दिया गया x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, ये अंडर रूट अपने आप जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा स्क्वायर निकालने पर। तो AP इक्वल टू BP, देयरफॉर AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट खत्म हो गया, और अंडर रूट खत्म हो गया तो ये बच गया x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, और ये x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर इस साइड भी आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर इस साइड भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और जब सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। केवल रिलेशन पूछा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x माइनस वाई के ही फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन x एंड y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस
विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 65 एंड बी -43। ठीक है, एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ध्यान दो, एक पॉइंट है वाई एक्सिस। अब मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, ये इस एग्जांपल का फिगर नहीं है, बस ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो ये y की वैल्यू 5 हो गई, x क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 5, मतलब x 0 और y 5। इसी तरह x एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो x 4 और y क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जिस एक्सिस पे होता है उसी की केवल वैल्यू होती है, उसी का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाले का 0 हो जाता है। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 65 एंड b -43। तो ध्यान दीजिए, वी नो दैट ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस ऑफ द फॉर्म 0y, मतलब कि y की वैल्यू होती है, x 0 होता है। सो लेट द पॉइंट बी p 0y। अब p को जो है 0y मान लिया गया। ठीक है, a और b एक पॉइंट है, a ये a हो गया, ये b हो गया। a के पास a का कोऑर्डिनेट लिखोगे, b के पास b का कोऑर्डिनेट लिखोगे, और एक पॉइंट है p, मान लेते हैं यही है। ठीक है, तो P की कोऑर्डिनेट कितनी हो गई, 0 और y हो गई। ठीक है, अब AP की डिस्टेंस और BP की डिस्टेंस। ठीक है, तो AP की डिस्टेंस AP इज इक्वल टू BP, तो ठीक उसी तरह जैसे कि 4th नंबर एग्जाम्पल में हुआ था, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस तरह इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 9, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9। अब आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, AP और BP दोनों की डिस्टेंस निकाल लीजिए 0 और 9 से। ठीक है, एक हो जाएगा x1 और 0 हो जाएगा y1। ठीक है, एक हो जाएगा a का कोऑर्डिनेट 65 और y का कोऑर्डिनेट 0 9 हो जाएगा। इससे जो डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट 52, और इसी तरह BP भी निकाल लेंगे अंडर रूट 52। ठीक है, तो ये जो है दोनों डिस्टेंस क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ये कर लोगे आप, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही रहेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, मतलब 1 माइनस, एक बार 4 माइनस 2 स्क्वायर और एक बार 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो जब से ही 1 माइनस 3 स्क्वायर करोगे तो ये -2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, चाहे 2 का स्क्वायर हो चाहे -2 का स्क्वायर हो, 4 होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन 7.2। एक 0 0 है, 36 और 15 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। डिस्टेंस निकालोगे इन दोनों के बीच का, और फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, और एक बार इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, अभी हमने बताया कोलिनियर के लिए क्या है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो ABC कर लोगे तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। ठीक है, चेक वेदर दिस 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो जब आप 3 डिस्टेंस निकालोगे AB BC और AC, नाम जरूर रख लेना ABC। ठीक है, AB से x1 y1 x2 y2, फिर BC x1 y1 x2 y2, फिर AC x1 y1 x2 y2। तीनों डिस्टेंस निकालोगे, अगर दो साइड इक्वल हो जाती है तो आप उसे कह दोगे यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, 5 नंबर है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? चमेली डिसएग्री। अब ये ABCD को स्क्वायर आपको दिखाना है। ठीक है, तो सबका कोऑर्डिनेट देख लीजिए, चारों साइड का डिस्टेंस निकाल लीजिए, और उसके बाद दोनों डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लीजिए, जैसा अभी हमने एग्जांपल में बताया। अगर सारा इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, 6 नंबर है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ जो है 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के, सब में क्या करोगे, चारों साइड निकालोगे A B C और D। तो AB BC CD और AD, और उसके बाद दोनों डायगोनल निकालोगे AC और BD। हमेशा याद रखना डायगोनल AC और डायगोनल BD एक साथ निकलेगा।
ठीक है। अगर चारों साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होता है तो स्क्वायर है। अगर चारों साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो रोम्बस है। अगर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होता है तो वो रेक्टेंगल है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है। 7 नंबर देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब क्या हो जाएगा, x और y जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और इसको p मान लोगे तो AP इज इक्वल टू BP, देयरफॉर AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अभी हमने बताया एग्जाम्पल में। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P2 -3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। डिस्टेंस ऑलरेडी 10 यूनिट दिया गया है तो 10 इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दोगे y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ 9 में देखिए, इफ़ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, तो जैसे y की वहाँ वैल्यू निकाले हो, p इज इक्वी डिस्टेंस है, q इज इक्वी डिस्टेंस तो pq इक्वल टू rq हो जाएगा। देयरफॉर pq स्क्वायर इज इक्वल टू rq स्क्वायर, स्क्वायर है तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा और उसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ये भी हो जाएगा, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy हो जाएगा तो px इज इक्वल टू, ये आपका सपोज करिए ये a, ये b, ये p, तो AP इक्वल टू BP हो जाएगा। AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। और जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल नंबर 4 में बताया रिलेशन, इसी तरह का रिलेशन इसमें भी आ जाएगा। ठीक है। सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस द डिस्टेंस फार्मूला, how to find the distance between 2 points on a plane which coordinates are given. Okay, and we have discussed exercise 7.1 and some examples. 5 examples are there. So all the 5 examples, distance formula and exercise 7.1 you have to do. I will send the PDF of exercise 7.1 and in the next class we will discuss about section formula. Okay, up to then, thank you, have a nice day.